we have to deal with this, and we know that we are made up of, we have a mental makeup, we have a physical makeup, we have a general makeup and miasm. And we also know that when we are understanding each and every aspect of mind, physical and general makeup, the miasms will rule out everything, because miasm rules every character. Let us take an example over here. Like if I tell you ki this is an individual of a psoric miasm, so you will remember the faces. Psoric features will be more cheerful, more delightful. We also took an example of miasm in a disease. So, diabetic, psoric diabetes will have a different manifestation. A psychotic person will have a psychotic features, that is on the body. Then, at the mind, also, you will have psychosis. At the disease level also, you will have psychosis in the preponderance as what you see in diabetic patients. But as the miasm advances, it is sora, psychosis and syphilis. And as this whole process goes off, so miasm will rule out everything. Even in embryology, if you understand Hering's law, so miasmatic reversal becomes the prime importance, and miasm also play every role, even in selection of right medicine. In materia medica, repertorial totality, if you have the miasmatic basis, you will never fail in your cases. And hence we are trying to understand this macrocosm, the responsible for the whole microcosm, and the relationship between your cell and the whole universe, and how miasmatically they are correlated, so that we come to a perfect simillimum. So, to cure, we know that we should know everything about the constitution. We should know not only the miasm but also the ailments from. So, this becomes the most important part in the case taking. So, before going ahead to the cell, I would take this Maslow's theory, because in case taking, I have really brushed it very fast because I wanted to take it in the miasm. We also dealt with your different aspects of case taking, and we have also dealt ki we are not come to this universe with our sole purpose, that we are come here कि आए हैं तो मरने के लिए ही आए हैं। हमारे कुछ ना कुछ पर्पसेस है, कुछ ना कुछ सोल एंटिटीज है जिसके कारण हम आए हैं। और हर इंसान का एक सोल जर्नी होता है, और हर एक इंसान का एक सोल पर्पस होता है, और उस सोल पर्पस के कारण वो इंसान यहाँ पे पैदा हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी कहीं ना कहीं हमारे खुद का ये प्लान रहा होगा कि हमको ह्यूमन बीइंग बनना है। फिर वी केम एज अ ह्यूमन बीइंग, वी सिलेक्टेड दैट वी वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो हमारा कुछ लाइफ का पर्पस था जो हमको आज तक के ड्राइव करता आया। कहीं न कहीं किसी न किसी के मन में रहा होगा कि हमको एक सोशल वर्क करना है, हमको इस ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। तो हमको इस ह्यूमैनिटी को कुछ देना है, हमको इस मदर अर्थ को कुछ देना है। और जब हम इन भावनाओं के साथ बढ़ते हैं आगे, बचपन से इन ड्रीम्स के साथ बढ़ते हैं, तब हम इस मिशन में आते हैं कि नहीं, हमको 12th के बाद हमको साइंस ही लेना है, एंड वी हैव आवर ओन पर्पस विच वी आर गाइडिंग इट। तो जब आप केस टेकिंग कर रहे हो, तो आपको वही पर्पस, वही मोटिव उस पेशेंट का फाइंड आउट करना है। आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल। लाइक yesterday we had a case of a lady of psoriasis who was a Brahma Kumari, and she was following this discipline, and since a very early childhood, and for my surprise, she was following everything since 6 years of age, when the consciousness was also not developed. So what was the drive which was pulling her? She was also into a world where was lot of luxury, lot of something which could have distracted her, but she maintained her dignity, she maintained herself, she maintained her purpose of existence. So in case taking, if you understand, they are not very subtle people who have just come to live, eat here, have babies and just go. No, they have come with some survival instinct. They have come with some self actualization, with strong wisdom, that yes, they have to work for the society, they have to give something to the whole universe.
So, as you understand the whole evolution in the case, you know that this is the need of that person, and why that person today in front of you as an individual, अगर वो आज आपके सामने गुस्से में दिख रहा है, तो आप उसको समझो कि वो गुस्से में क्यों है. You have to go to the basic core of that person, and you have to find out what is the basic drive, what he's अभी हमारे सामने कई बार कुछ बिजनेसमैन आके बैठते हैं, तो दे शो कि हम इतने बड़े हैं, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हमने इतना इस्टेब्लिश किया, इतना किया. एंड देन व्हेन यू टेक अ केस एंड यू क्रॉस क्वेश्चन विद द वाइफ, तो वाइफ के सामने वही इंडिविजुअल जो अपने आप को बोस्ट कर रहा है कि वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, उसने बहुत सारा इस्टेब्लिश किया, पर वाइफ की नज़रों में अगर आप पूछते हो तो वो फेलियर है. वो बोलेगी कि मुझे इन पैसों से क्या करना है, मुझे तो मेरा हस्बैंड चाहिए था, पर इस इंसान ने पैसों की दौड़ में मेरा ये समय, कीमती समय गंवा दिया. क्यों? क्योंकि उस पर्सन की ड्राइव जो थी वो पैसा कमाना है. तो उसके लिए ऐसा है कि बहुत सारा लग्ज़री चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे तो रॉयल्स रॉय कार चाहिए, एंड दे आर नेवर सैटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव इन देयर लाइफ. सो एवरी पर्सन विल हैव देयर ओन ड्राइव. अब एस्टीम वाले को अगर हम देखते हैं, तो कई लोग हमारे सामने आते हैं कि दे गेट ऑफेंडेड सो ईज़िली. उनसे अगर किसी डॉक्टर ने मतलब सामने हमारे डेस्क पर कोई पूछ ले कि आपको किसने रेफ़र किया है क्या? तो वो आंसर ये नहीं देते कि हाँ, इस पर्सन ने हमको रेफ़र किया है. वो हमको बोलेंगे कि आप क्या मार्केटिंग कर रहे हो? आपको क्यों चाहिए कि किसने रेफ़र किया? आपको क्या करना है, किसने रेफ़र किया? क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू रिवील दैट दे हैव कम to you. They have their own esteem, they have their high self esteem, they are very egoistic and very haughty. So you will see that every person, every individual coming to you, जितने भी केसेस, आप डायबिटीज देख लो, आप बीपी देख लो, जो भी केस आपके पास अगर सुबह से लेकर रात तक के 60 पेशेंट्स आते होंगे, तो हर 60 पेशेंट एक इंडिविजुअल है, और हर इंडिविजुअल का एक खुद का सोल प्लान है, और उस सोल प्लान को लेके वो चल रहा है. तो आपको वही समझना है. आप जब केस टेकिंग कर रहे हो, तो आपको समझना है कि अगर ये बंदा आज आपके पास डर के बैठा है, तो ये डर क्यों रहा है, इसके पीछे उसका रीज़न क्या है. अगर आज वो एंग्री है, वो एग्रेसिव है, वो रेस्टलेस है, तो उसके पीछे का रीज़न जाना है. तो यू नेवर हैव टू लीव द क्वेश्चन वाई. And this Maslow hierarchy of needs, or Maslow theory of needs, really works wonder, and this is the best philosophy which could explain why the person is like this in today, and why he is suffering also you can get through this Maslow's theory, because Maslow theory is based upon your needs. So every person, every human being has come here with certain purpose. तो हर पर्सन अपने पर्पस के साथ, उस ड्राइव के साथ जी रहा है. अगर कोई इस पर्पस के साथ आया है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल लाइफ जीनी है, मुझे यहाँ पर सिर्फ ऐसी एक लाइफ जीनी है जहाँ पे खाना पीना सोना, हैविंग बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ एनिमलिज्म, यही बस मुझे मेंटेन करना है, और मुझे इसके आगे नहीं बढ़ना है. तो ये इंडिविजुअल्स आपको दिखेंगे जो मल्टीपल कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होंगे. दे डोंट हैव ब्रेन, and their body is just like a vegetable, because their whole life is stuck up with this physiology only. You can't you in हमारे कैंप में जब केसेस आते हैं हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो हम उनको देखते हैं, तो उनका पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का, वो क्या कर रहे हैं. कुछ नहीं, वो अपने माँ बाप के साथ पूरा डिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, और सुबह से शाम तक के उनके पेरेंट्स का क्या काम है, उनको खाना खिलाना है, उनका सुसु पॉटी साफ करना है, उनको कभी कफिंग हो जाता है, कभी ब्रीदिंग इश्यूज हो जाता है, थोड़ा बहुत वो वर्बली रिस्पॉन्ड करते हैं, अदरवाइज दे आर फुल्ली इनटू दिस वेजिटेटिव लाइफ, एंड दे आर ओनली सर्वाइविंग दिस फिजियोलॉजिकल नीड. तो अगर आपको समझेगा कि ये बंदा सिर्फ फिजियोलॉजी की नीड पे स्टकअप हो गया है, यानी कि आपको समझेगा इन केसेस में क्या अप्लाई करना. फिर आपको पता है कि क्योंकि फिजियोलॉजी में अटका है, तो उसका आगे का डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है, उसके इमोशंस कहाँ डेवलप हुए हैं, वो तो सिर्फ एक एनिमल ही है. तो
ऐसे समय आपको उसके एनिमल बिहेवियर नहीं लेने हैं, आपको उसके सिर्फ फिजियोलॉजिकल नहीं लेना है, आपको उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, उसके और एक डीप लेयर पे जाना पड़ेगा। मतलब आपको उसके मदर की हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी कि उसने ऐसा सिग्नल क्यों दिया। आपको आगे नहीं, आपको इसके नीचे के लेवल पे जाना पड़ेगा कि ये पर्सन ऐसा यहाँ पर क्यों पैदा हुआ। तो मैस्लो थ्योरी आपको उस तरीके से हेल्प करती है। और आपको सर्वाइवल के लिए पानी चाहिए, आपको सर्वाइवल के लिए एयर चाहिए, आपको सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए। और आपको ये भी पता है कि अगर आपका सर्वाइवल आपको करना है तो बेसिक इंस्टिंक्ट तो सिर्फ सर्वाइवल ही है ना। तो ये जो बच्चे हमारे पास मेंटल रिटार्डेड वाले आते हैं या कॉन्जेनिटल एनोमलीज वाले कैंप के होप होपलेस के केसेस आते हैं, तो हम उनको क्या देख रहे हैं, हम उनके अंदर वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ ब्रीदिंग, खाना, पानी, सुसु, पॉटी और नींद और अपना एक नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के स्ट्रगल में ही ख़त्म हो गई। And they don't grow over, and therefore even their body don't grows. So you have to find out where they are stuck up in this physiology. So where the sora is stuck up, so you have to find out the sora in such cases. And this physiological need is nothing but the sora, what we say. And you have to find that sora which is coming to them from the mother. So we have already dealt this when we were dealing with the case taking part, that how to correlate when you are dealing with such rare cases or the congenital anomalies and how to correlate with them. नाउ गोइंग अहेड कि जब आपको मैं ये बोलूँ कि एवोल्यूशनरी टाइम पे आपको खाना अच्छे से मिलने लगा। अभी आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत सफोकेशन हो रहा है, तो इंसान सबसे पहले क्या सोचेगा, पहले विंडोज़ खोलो। क्यों? क्योंकि एयर आने दो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एयर का कोई रिजर्वायर नहीं है। हमको एयर का कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए फॉर अ मिली सेकेंड ऑल्सो। इफ the breathing is stopped, you will have hypoxia. You cannot survive without this air. So this becomes your basic first need of the body. Then if I tell you ki chalo you have to do fasting, so you will say yes ma'am, I can do fasting, but I will have a certain limitation for that fasting because my body has got its own glucose, it has got its own starch, it has got its own carbohydrate, so it has got its own metabolic system. तो ये सारा मेटाबॉलिज्म कुछ एक लिमिट तक के ही काम करेगा, उसको एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए। तो विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव फॉर 15 to 20 days, but without water we will not be able to survive more than 7 days, but without air we will not be able to survive even 7 minutes, because it becomes your essential basic need. So this is your survival, this is for your survival instinct. And every system which is functioning into your body, that will all come to you as your sora. I will take it ahead, you will understand in a better way. सेकेंडली, अब जब हम और हेरार्की पे तरफ जाते हैं एंड अंडरस्टैंड दिस मैस्लो थ्योरी, तो मैं आपसे बोलूँगी ठीक है, नाउ यू आर ग्रोन अप, आप 18 साल के हो चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपको पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए, आप खुद कमा सकते हो, खुद केपेबल हो। तो आप क्या सोचते हो, नाउ आई हैव टू मेंटेन अ करियर, I want that I should have a good independent life because I want to become an independent individual. हमारे ईगो का डेवलपमेंट होता है। नेट बंद हुआ, वॉइस रुका ना। इंटरनेट बंद हुआ, इंटरनेट बंद हुआ। अरे इंटरनेट बंद हो गया ना, तो भी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना। अब कनेक्ट हो गया।
इसमें कनेक्टेड दिखा रहा पर फिर भी इंटरनेट नहीं शो कर रहा। डिस्कनेक्ट करके फिर से करें, फिर से दो बार कर दिया वैसे। अब आ रही हूँ मैं, कनेक्टेड आ रहा हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करती हूँ। Yeah. So you go ahead and yeah. So I okay. सो या सो व्हेन यू नो कि अब हमारे पास खाने पीने के लिए है, वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी आर मूविंग अहेड। सो जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है, हमको पता है कि अब हमको हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे पेरेंट्स की नीड नहीं है। एंड व्हेन यू क्रॉस योर एज कमिंग फ्रॉम 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यू बिकम एन एडल्ट। तो आप क्या सर्च करते हो कि अब मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है। मैं अपने पेरेंट्स के नाम से ना जाना जाऊँ, मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाने जाएँ। मुझे एक अच्छा सिक्योरिटी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एक ऐसा सिक्योर करियर चाहिए, मुझे एक ऐसा सिक्योर बैकग्राउंड चाहिए जिसके भरोसे मैं रह सकूँ। मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए जहाँ मैं बहुत अच्छा दिखूँ। आई शुड बी लुकिंग अट्रैक्टिव, आई शुड ओन अ कार, आई शुड ओन अ बंगलो, बिकॉज़ यू वांट सिक्योरिटी नाउ। पर ये तभी पॉसिबल है, आप इस सिक्योरिटी के बारे में तभी सोचोगे जब आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होगी। देन व्हेन अगेन गोइंग अहेड, जब आपका ये बेसिक सिक्योरिटी नीड्स और आपको पता है कि अब आपकी लाइफ एक ऐसे स्टेज पे आ गई है कि अब आप थोड़े सिक्योर हो गए हो, अब आपको मम्मा के ऊपर डिपेंड नहीं होता है फॉर योर मनी, फॉर योर पॉकेट मनी। अब आपके पास थोड़ा सफिशिएंट मनी है कि यू कैन स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन हैव अ गुड टाइम विथ योर, नाउ यू फील लाइक कि अब सिक्योरिटी आ चुकी है अगर लाइफ में। तो हमारी लाइफ अब एक ऐसे मोड़ पे है कि जब एक पार्टनर की कमी महसूस होने लगती है, एंड यू फाइंड दैट योर लाइफ इज इनकम्प्लीट एंड यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर समवन हु विल मेक यू कंप्लीट। नाउ यू स्टार्ट सर्चिंग विथ whom you will have that feeling of belongingness। और आप अपने करियर में फिर से गया। तो जब आप अपने करियर में सेटल हो चुके हो और आपको पता है कि हाँ आप अच्छा खासा कमा सकते हो, एंड यू नो दैट यू कैन रन योर फैमिली, तो यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ पार्टनर। एंड बिकॉज आपकी लाइफ में अब सिक्योरिटी है, आपकी लाइफ में आपका खुद का एक आइडेंटिटी है। तो आप अगर मैट्रिमोनियल साइट में आपका नाम भी डालते हो तो पीपल स्टार्ट हंटिंग फॉर यू। पीपल, जैसे ही आप ग्रो हो जाते हो तो अपने आप आपके रिश्ते आने चालू हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़ने लगते हैं, भाई अब सेटल हो जा, अब कब लाइफ में सेटल होगा, कब तक के तू शादी करेगा, कब तेरे बच्चे पैदा होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तभी आएगी जब आपको खुद को एक सेफ्टी फील होगी, आपकी खुद की बेसिक। अगर आपके पास ऐसा जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो क्या आपके पेरेंट्स भी आपको शादी के लिए बोलेंगे? नहीं। तो ये सारी चीज़ें तभी आएगी जब आपका बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होगा। देन अगर आपकी शादी हो गई, आपका, देन यू फील लाइक कि हाँ शादी हो गई तो नाउ आई शुड, मेरे पास अब सब कुछ है, पर मैं ये सारी चीज़ें लेके मरना नहीं चाहूँगी। एंड आई वॉन्ट दैट समवन शुड कैरी दिस अहेड इन द फ्यूचर। कोई तो ऐसा हो जो मेरे इन सारी फीलिंग्स को समझे और मेरे इस ज्ञान को समझे, और ये ज्ञान लेके आगे नहीं मरना है मुझे। तो एक ऐसा पर्सन तो कोई हो जो मेरा ये सारा शेयर कर सके।
उस समय आपकी इच्छा होगी कि चलो अभी मेरा पार्टनर भी अच्छा है, जॉब भी अच्छा खासा है, मैं भी कमाती हूँ, मेरा पार्टनर भी कमाता है, और मेरा लाइफ भी अभी सेटल्ड है। हमको जैसा घर चाहिए था, फ्लैट चाहिए था, वो भी हो गया। हमारे पेरेंट्स भी हैप्पी है, हमारा जॉब भी सिक्योर्ड है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो नाउ वी स्टार्ट थिंकिंग कि अब ये टाइम है जब डिवीजन का टाइम है, ये टाइम है जब हमको प्रोक्रिएट करना है, ये वो टाइम है जब हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रोजेनी डेवलप हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सिक्योर्ड हो। ठीक है? तो दिस इज अनदर नीड ऑफ द पर्सन दैट दे वांट sexual intimacy, not only for pleasure but also for continuing our progeny, which is another instinct given to you by the god for द सर्वाइवल। क्योंकि अगर ये इंस्टिंक्ट नहीं होता तो आप कैसे सर्वाइव ही नहीं होते। किसको पता चलता कि भाई डॉक्टर हैनेमन किधर थे? कोई ना कोई उस नॉलेज को फर्दर गेन करते हुए आते जा रहा है, आते जा रहा है। उन्होंने बुक्स लिखी, अपने आप को एक्सपैंड किया, और जब तक कि आप अपने आप को एक्सपैंड नहीं करोगे तब तक कि आपकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी? तो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, नाउ आई वांट दैट आई शुड हैव माय नेम एंड फेम, बिकॉज अब मेरे बच्चे भी हो गए, अब मेरा सर्टेन पोजीशन है सोसाइटी में, मेरा खुद का एक परफॉर्मेंस है सोसाइटी में, एंड पीपल नो मी दैट आई एम सो एंड सो विथ माई ओन आइडेंटिटी। और अब मेरा खुद का एक ईगो भी डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी फैमिली लाइफ सिक्योर्ड है, मुझे मेरे बच्चे मिल चुके हैं। तो अब हमारा एस्टीम डेवलप होता है। यहाँ से एस्टीम तो बहुत पहले से, दिस इज नॉट अ थ्योरी फॉर ईगो डेवलपमेंट, बट येस, जब सारी चीज़ें हो जाती है देन यू स्टैंड इन द सोसाइटी दैट दिस इज माई आइडेंटिटी विद दैट कॉलर। और फिर आपको भी डिज़ायर होने लगता है कि हाँ, अब मेरी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं पहले, अगर आप 14-15 साल के हैं ना, तो आपको कोई, आप निश्फिक्र होके रोड पे ना ऐसे हाथ घुमा के गाड़ी धैड़ है करके हॉर्न बजाते हुए आप निकल जाओगे। पर लेकिन अब आप सोचिए, नाउ आफ्टर गेनिंग सर्टेन नेम इन द सोसाइटी, you become so conscious of yourself, because you know that people know you by your name, they know you by self, because you know that this is the respect what I have achieved all through these life in my career, या उस बंदे ने वो सब। और फिर अगर कोई पर्सन उसको धक्का देते तो वो स्टीम हर्ट हो जाएगा, वहाँ पे पेशेंस ब्रेक डाउन होते हैं। तो वैसे ही आपका स्टीम नीड है। लेकिन जब आपका ये सारा चीज़ें हैं, आपका नाम है, तो फिर इंसान सोचता है कि अब जब मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ कमा लिया है, तो एक समय आता है जब वो सोचता है कि अब इससे और ऊपर उठना है, जब मुझे सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे एक, जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा अभी वीडियो में, तो हमने क्या देखा, एक सेल से शुरुआत हुई, एक आई से शुरुआत हुई, एक आई एक्सपैंड होते हुए, एक्सपैंड होते हुए, एक्सपैंड होते हुए, और वो एक एक्सपैंड होके एक यूनिवर्स बन गया, और दैट यूनिवर्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर ओन सेल्फ। तो वैसे ही जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होगी, हमारा बेसिक सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो गया, हमारा एस्टीम सेटिस्फाई हो गया, तब हम अपने एक्सपेंशन की बात करते हैं। और ये एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिकल वर्ल्ड तक के लिमिटेड नहीं होता है, फिर हमारा एक्सपेंशन होता है फॉर द होल यूनिवर्स, फॉर द बेटर एग्जिस्टेंस। और हम अपने से ज़्यादा फिर दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते हैं, फिर हम यूनिवर्स के लिए, हम ब्रह्मांड के लिए सोचने लगते हैं, हम दूसरों के लिए सोचते हैं, हम मदर अर्थ के लिए सर्विसेज देते हैं। तो दे आर द पर्सन हु लिव फॉर दिस सोसाइटी। तो अब जब आप केस टेकिंग करते हो तो आपको समझेगा कि कुछ लोग यहाँ पे अटके पड़े हैं। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो कुछ नहीं है, वो आपका सोरा है। जब आप सेफ्टी की बात करते हो, बिलोंगिंगनेस की बात करते हो, प्रोजेनी की बात करते हो, वो आपका साइकोसिस है। और जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हो तो वो आपका सिफिलिस है। तो जैसे जैसे आप इस पीक पे जा रहे हो, वैसे वैसे आपका एरो हेड भी शार्प होते जा रहा है। सोरा, साइकोसिस, और दिस इज योर सिफिलिस। तो सिफिलिस उतना ही शार्प एंड पे खड़ा हुआ है।
और ये सारा चक्र जो है, सोरा से लाइफ स्टार्ट होती है, साइकोसिस पे जाती है और फिर से सिफिलिस पे आती है, पर फिर से सिर्फ सोरा चालू हो जाता है। तो ये ऐसा चक्र चलते ही जा रहा है। और वही हमने उस वीडियो में भी देखा, एक आय से शुरुआत हुआ, वो पूरा ब्रह्मांड बना, और वो ब्रह्मांड फिर से एक आय पे गया, और वो आय एक सेल की तरफ गया, और वो सेल भी आपके ब्रह्मांड की तरफ। सो दिस इज द होल साइकिल इन दिस वर्ल्ड विच इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, एंड everyone is surviving with this own thing। बस इतना डिफरेंस है कि कुछ लोग, जैसे जो मेंटल क्वालिटीज के होते हैं, वो इस फिजियोलॉजिकल नीड का जो पार्ट है, या जो सेफ्टी और बिलोंगिंगनेस का पार्ट है, वो बहुत जल्दी वो क्रॉस कर चुके होते हैं, और बहुत अर्ली लाइफ में दे आर विद दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्योंकि जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया, वो बीके मैम जो आए थे, वो 6 साल में ही उनको समझ गया कि वो इस धरती में अपने लिए नहीं आए, वो सेवा करने आए हैं, वो दूसरों के लिए आए हैं। 6 साल की उम्र में किसको समझता है? वी हैव सो मेनी साधुज जिन्होंने 8 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। क्यों? क्योंकि उनको समझ गया, जिस लाइफ में वो शायद पास्ट लाइफ में अपना वो सारा चक्र पूरा करके आए हैं, तभी इस बर्थ में उनको ये सारा चीज़ें फील हो रहा है। पर ये सारा साइकिल जो है वो मैथमेटिकली ही कोरिलेट होता है।